Hello students and welcome to today's biology class. So in the previous class we have discussed about the different aspects of central dogma, and we have seen into the process of replication, transcription, translation. We have also seen into the genetic code and the operon concept, specifically lac operon. तो इतना दूर हमने डिस्कस कर लिया है. आज आगे बढ़ते हैं and let us move on to the next topic, that is human genome project. Now, Human Genome Project is a very important aspect of genetics as far as it is concerned with the human understanding of our genes. ये प्रोजेक्ट इसलिए किया गया था कि हम जान सके, we can understand what are the genes present in our chromosomes, how are they arranged, what kind of variations do they show, and many other implications. So just to understand our genome, to understand our genes, we have conducted this project which is called as Human Genome Project. Now let us see what this project is all about. Let's begin. Human Genome Project, or HGP, was internationally scientific research project which got successfully completed in the year 2000. तो ये the year 2000 में complete हुआ, and it was launched in the year 1990, which was coordinated by the US Department of Energy and National Institute of Health. So this you have to remember, students. ये initiate हुआ था 1990 में by the US Department of Energy and National Institute of Health, and it took 13 years for this to be completed. So it got completed in the year 2003. And this project actually was for sequencing 3.3 billion base pairs of our genomic DNA. तो हमारा जो DNA है उसका 3.3 बिलियन बेस पेयर्स को हमने सीक्वेंस किया, उसको देखा कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा जीन है, किसके बाद कौन सा जीन आता है. तो we completely sequenced all the 3.3 billion base pairs. So that is why it is a very big project. It was called as a mega project. इसको मेगा प्रोजेक्ट का नाम दिया गया. क्यों दिया गया? First thing, human genome is 3.3 into 10 to the power 9 base pairs, and sequencing cost about $9 billion US. तो सबसे पहला जो चीज था, the size of the genome and the cost which came along with it for sequencing the total genome. So that is the reason, that is one of the reason why it was called as a mega project. Secondly enough, the enormous amount of data that was expected to generate, which requires high speed of computational devices for data storage and analysis. तो यहाँ पे क्या है कि आप देखो, जब हम लोग जीनोम का बात कर रहे हैं, that means all the genes present in our body, but the problem with human beings are we are having different races. अलग अलग रेस हैं, अमेरिकन्स हैं, यूरोपियंस हैं, इंडियंस हैं, चाइनीज हैं, ऑस्ट्रेलियंस हैं, निग्रोज हैं, अफ्रीकन्स हैं. सो इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट जीनोटाइप्स हैं. तो उनका जीनोम कलेक्ट करना, उनको फिर सीक्वेंस करना, उनका डाटा स्टोर करना, उसको एनालिसिस करना, ये बहुत पेन्स टेकिंग टास्क है. एंड वेरी हाई अमाउंट ऑफ डाटा स्टोरेज एंड एनालिसिस वाज रिक्वायर्ड, जिसके लिए हाई स्पीड कंप्यूटर्स यूज किए गए थे. सो दैट वाज अ वेरी बिग डाटा एक्यूमुलेटिव प्रोजेक्ट. Last but not the least, 20 different countries, scientific institutions were involved in it, which belong to 6 different countries: USA, UK, China, Japan, Germany, and France. So these are the 6 different nations who initiated this process, who coordinated this process. लेकिन स्टूडेंट्स ये चीज याद रखो कि many more, 100 more different research institutes were involved in this, belonging to different countries. ना ये जो 6 कंट्री का हमने नाम लिखा, ये सिर्फ कोऑर्डिनेट करते थे, लेकिन इनका जो सीक्वेंसिंग हुआ वो बहुत सारे, मोर देन 100 लैब्स, इंस्टीट्यूशनल लैब, साइंटिफिक लैब्स में इसका टेस्टिंग हुआ था, इसको सीक्वेंसिंग हुआ था, और सबका डाटा मिला के फिर हमें अपना टोटल जीनोम मिला. सो दीज आर द 3 रीजंस व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए मेगा प्रोजेक्ट. Now the goals of Human Genome Project, this is very simple, you don't need to understand very much, just go through with it. इसको एक बार आप सिर्फ पढ़ लो. Goals of Human Genome Project include optimizing data analysis. हमें optimize करना है कि हमारा जो जीनोम है कैसा है. As I told you कि हमारे पास बहुत सारे अलग अलग ethnic groups हैं, बहुत सारे अलग अलग races हैं, तो हर किसी का जीनोमिक डाटा अलग अलग होगा. अब इंडियंस का हमारा जीनोमिक डाटा अलग होगा, ऑस्ट्रेलियंस का अलग होगा, चाइनीज का अलग होगा. तो सब डाटा को ऑप्टिमाइज करना था हमें, हमको एक स्टैंडर्डाइज सेट करना था उसका.
मतलब ऑल ह्यूमन बींग्स का एक स्टैंडर्डाइज्ड जीनोम सीक्वेंस क्या होना चाहिए, दैट वी हैड टू डू। सेकेंड थिंग, सीक्वेंसिंग ऑफ द एंटायर जीनोम, हमें जानना था कि हमारा टोटल जीनोम जो है, हमारा जो टोटल बॉडी में जीन्स हैं वो किस तरह से अरेंज्ड हैं, तो वी हैड टू सीक्वेंस दैट। नेक्स्ट वी हैड टू आइडेंटिफाई द कंप्लीट ह्यूमन जीनोम, हमें आइडेंटिफाई करना था कंप्लीट ह्यूमन जीनोम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीक्वेंस कर दिया और छोड़ दिया, फिर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सीक्वेंस किसके लिए कोड करता है। ना रिमेंबर, हमारा जो डीएनए सीक्वेंस है, ऑल दी जीन्स डू नॉट कोड फॉर एनी कैरेक्टर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपको डीएनए मिल जाएंगे जो जंक डीएनए होता है, जिसका कुछ यूज नहीं होता या फिर जो एक्सप्रेस नहीं हो पाता। तो हमें टोटल सारा आइडेंटिफाई करना था, वी हैव टू आइडेंटिफाई ऑल ऑफ इट। नेक्स्ट, क्रिएटिंग जीनोम सीक्वेंस डाटाबेस टू स्टोर डाटा। अब ये जीनोम डाटा जो ये इन्होंने स्टोर किया, डाटाबेस जो इन्होंने बनाया, इसका मेन रीजन था, सी वी आर स्टिल एन इवॉल्विंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम लोग ह्यूमंस हैं, एक स्पीसीज हैं, और हर स्पीसीज इवॉल्व करता है, हम लोग भी इवॉल्व करते हैं। एज ए रिजल्ट हमारा अभी जो जीनोमिक सीक्वेंस है, आज से आउट ऑफ 1000 years हमारा जीनोमिक सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, हम लोग इवॉल्व हो गए होंगे। तो व्हाट आर द चेंजेस, उसको जानने के लिए पहले अभी का जो डाटा है उसको हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा कि हाँ, in the year 2020 this was the gene sequence of human beings, in the year 2000 and suppose 2700, आज से 700 साल बाद आप लोग तो जीनोम सीक्वेंस ऑफ ह्यूमंस वाज दिस। तो जब आपके पास ये हो जाएगा तो आप कंपेयर कर सकते हो कि इवोल्यूशन में हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, हमारे जीन्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। सो दैट इज व्हाई दिस डाटाबेस वाज क्रिएटेड, टेकिंग केयर ऑफ लीगल एथिकल सोशल इश्यूज फॉर प्रोजेक्ट दैट प्रोजेक्ट में पोजेस। तो यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, इतने सारे कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, इतने सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, बिसाइड्स दैट इतने सारे पॉपुलेशंस हैं, कुछ ट्राइबल्स होते हैं तो कुछ अर्बन होते हैं तो कुछ रूरल होते हैं, सारे पॉपुलेशंस को फिर मिला के बनाना, तो इनका एथिकल लीगल इश्यूज सोशल इश्यूज भी कुछ रहता है, एज बिकॉज इतने सारे डाइवर्स टाइप ऑफ ह्यूमन बींग्स के साथ हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं उनका सीक्वेंसिंग करने के लिए। So these were the goals of Human Genome Project. Now the methodology, कैसे किया गया? सबसे पहला है the complete gene set was isolated from a cell. तो एक सेल से जितना भी जीन सेट है उसको आइसोलेट किया गया पहले, फर्स्ट यू हैव टू आइसोलेट, एंड दैट इज डन बाय यूजिंग डिफरेंट एंजाइम्स। हम लोग लाइटिक एंजाइम्स यूज करते हैं जिससे सेल मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाता है, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाता है और अंदर जो जेनेटिक मटेरियल रहता है वो बाहर निकल आता है, उसको फिर हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, देन स्प्लिट द टोटल जीन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। तो इनका जो टोटल जीन सीक्वेंस था, टोटल जीनोम है, उसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया सो दैट इट कैन बी सीक्वेंस्ड। देखो हमारा जो डीएनए होता है 2.2 मीटर्स लॉन्ग होता है, इट्स वेरी लॉन्ग, एंड दिस डीएनए उसमें thousands and thousands of base pair होते हैं, so it is very difficult to sequence all the base pairs in a single DNA at a given time। एक साथ सारे काउंट करना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हमने क्या किया, उसको काट दिया हमने ना। सपोज ये एक आपका डीएनए है, वी कट इट इनटू सेगमेंट्स, छोटे छोटे सेगमेंट्स में हमने काट दिया, एंड वी यूज्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फॉर दिस पर्पस। To cut this total DNA into small fragments, we used restriction endonuclease। ये वाला आप लोग लिख सकते हैं, you can take this down। जो एंजाइम यूज किया गया था वो था restriction endonuclease। We'll discuss more about this restriction endonuclease in the upcoming chapter, but ये एंजाइम यूज करके हमने टोटल डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। ठीक है, now after that what was done, each of this was inserted into a vector, amplified and then transferred to the respective laboratories। और उसके लिए दो अलग अलग टाइप के हमने आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स यूज किए थे, एक था बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, दूसरा था ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अब ये वाला स्टेप अच्छे से समझो स्टूडेंट्स। अब हमने छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, टोटल सीक्वेंस एक साथ करना मुश्किल है, तो हमने क्या किया, हर एक छोटे सेगमेंट को हम एक दूसरे लैब में ट्रांसफर कर दिए। लाइक सपोज ये वाला आपका हो गया सेगमेंट 1, ये जो पहला वाला आपने काटा ये हो गया सेगमेंट 1, ये वाला हो गया सेगमेंट 2। तो व्हाट यू डू कि ये जो सेगमेंट 1 है इसको एक वेक्टर के अंदर हमने इंसर्ट कर दिया। वेक्टर मतलब वो एक ऐसा डीएनए सीक्वेंस होता है जो फॉरेन डीएनए को कैरी कर सकता है। ठीक है, तो जनरली इसके लिए हम लोग प्लाज्मिड्स यूज करते हैं, इसके बारे में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमने क्या किया, हमारा जो S1 सेगमेंट 1 जो था उसको हमने एक बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में डाल के बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। नाउ दैट जीन हैज गॉन इनटू द बैक्टीरिया। नाउ व्हाट वी कैन डू कि वी कैन ट्रांसफर दिस बैक्टीरिया टू ए लैब। अब ये जो जीन होता है, एक जीन को डायरेक्टली आप लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते, इट्स नॉट लाइक यू कैन टेक ए जीन, पुट इट इन ए पार्सल एंड गिव इट टू ए लैब।
ऐसा तो नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, उस जीन सीक्वेंस को एक बैक्टीरिया में डाला, बैक्टीरिया का कल्चर किया हमने, और उस बैक्टीरियल कल्चर को हमने ट्रांसफर कर दिया लैब में। So in that lab, when the scientists will receive it, again they will take out the bacteria, उसमें से वो जीन निकालेंगे और उसको सीक्वेंस करेंगे। This is how it was done. तो उसके लिए दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स यूज किए गए, एक है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, दूसरा है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। नाउ द स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, ये जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स थे, एक एक करके सबको हमने सीक्वेंस कर लिया। ऑल द स्मॉलर फ्रेगमेंट्स वर देन सीक्वेंस्ड यूजिंग ए मशीन व्हिच इज कॉल्ड एज डीएनए सीक्वेंसर। ये मशीन आप डायरेक्टली सीक्वेंस कर सकता है, आप डायरेक्टली उसमें डीएनए डाल दो, देयर आर सर्टेन एंजाइम्स एंड सर्टेन अदर मेटाबोलाइट्स रिक्वायर्ड, उसको भी इसके साथ डाल दो, तो वो धीरे धीरे करके टोटल सीक्वेंस वो डिटरमाइन कर लेता है, इट कैन डिटरमाइन द टोटल सीक्वेंस। ठीक है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग रीजंस द सीक्वेंस आर देन अरेंज्ड। यहाँ पे जो हमने सेगमेंट्स डाला था, सपोज यहाँ से यहाँ तक एक सेगमेंट है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे कुछ आपके न्यूक्लियोटाइड्स ओवरलैप करेंगे, उसके बाद सेकेंड सीक्वेंस स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे कुछ ओवरलैप करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टार्ट होगा। तो उससे हमें पता चलता है कि कौन सा सीक्वेंस किसके बाद होता है। तो हमने सारे सीक्वेंस अलग अलग जगह से उसको सीक्वेंस किया, सारे जीनोम को हमने छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया, हर फ्रेगमेंट का सीक्वेंस हमने एनालाइज किया, उसके बाद सारे सीक्वेंस को फिर से जोड़ दिया जैसे हमने उसको डिवाइड किया था, सेगमेंट 1, उसके बाद सेगमेंट 2, उसके बाद सेगमेंट 3, सबको एक साथ जोड़ दोगे, देन यू विल फाइंड ए टोटल क्रोमोसोम सीक्वेंस विल बी डन। दैट इज हाउ दिस सीक्वेंसिंग वाज कैरिड आउट। ठीक है। All the information of this genome sequence was then stored in the computer database. तो कंप्यूटर डाटाबेस प्रोग्राम में ये सारा जीनोम सीक्वेंस हमने स्टोर कर लिया। As I told you कि इसको हमने स्टोर किया है for further use to understand the evolutionary lineage. Now this way the entire genome was sequenced, stored in genome database computers. Genome mapping was next goal which was achieved by help of microsatellites or repetitive DNA. तो नेक्स्ट हमने क्या किया, जीनोम मैपिंग किया। जीनोम मैपिंग का मतलब होता है कौन सा जीन क्रोमोसोम के किस पार्ट में है। मैप, एज आई थिंक यू अंडरस्टैंड, मैप एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है जहां पे आप देख के बोल सकते हो कि कौन सा चीज कहाँ पे है। लाइक अगर आप लोग इंडिया का मैप देख रहे हो तो वहां पे कौन सा स्टेट कहाँ पे है, कौन सा सिटी कहाँ पे है, आप बता सकते हो। सिमिलरली एक क्रोमोसोम पे कौन सा जीन कहाँ पे है, उसको जब हम लोग डिटरमाइन करते हैं उसको बोला जाता है जीनोम मैपिंग। Which gene is present in which part of the chromosome, which chromatid of the chromosome, which locus of the chromosome, that can be determined by genome mapping, and it was done by the help of microsatellites. ये जो माइक्रोसैटेलाइट होते हैं ये छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं डीएनए के, दे आर स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए प्रेजेंट बियॉन्ड द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। इसको हमने क्लास 11th में स्टडी किया था स्टूडेंट्स। अगर आप लोग क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर याद करोगे तो सेंट्रोमियर को हम लोग प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, और आपका जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है दैट कैन बी अवे फ्रॉम द सेंट्रोमियर एट एनी ऑफ द आर्म्स। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो होता है उसके बाद जो जीनोमिक सीक्वेंस होता है उसको हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं। तो ये माइक्रो सैटेलाइट सीक्वेंसेस वहां पे होते हैं जो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस होते हैं। फ्रॉम दैट वी हैव कैरिड आउट द जीन मैपिंग, बाय द हेल्प ऑफ दो स्ट्रक्चर्स हमने जीन मैपिंग किया है। ठीक है। Now, what are the features of HGP, Human Genome Project? First, our entire genome is made up of 316.7 million base pairs. हमने ये चीज डिटरमाइन किया आफ्टर द जीनोम सीक्वेंस के 3164.7 million base pairs हमारे जीनोम में होते हैं। On an average, a gene is made up of 3000 nucleotides. एक जीन 3000 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, और 3000 बेस पेयर्स आप लोग बोल सकते हो से बना होता है। ओके, बिकॉज वी नो कि आवर टोटल डीएनए इज 2.2 मीटर्स लॉन्ग, और उसमें से छोटा 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 सेगमेंट होता है जो जीन कहलाता है, which codes for different kinds of proteins, right? Now the function of more than 50% of the genes is yet to be discovered. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स में इतना जीनोम है कि सारा जीन हम लोग स्टडी नहीं किए हैं अभी तक। वी डू नॉट नो द सीक्वेंस ऑफ ऑल द जीन्स एंड द फंक्शन ऑफ ऑल द जीन्स। तो अभी 50% जीन्स का फंक्शंस हमें डिस्कवर करना बाकी है। प्रोटीन्स कोड फॉर लेस देन 2% ऑफ द जीनोम। तो हमारे बॉडी में जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोड करते हैं जीन, वो लेस देन 2% ऑफ आवर टोटल जीनोम होते हैं। तो इमेजिन करो कि कितना पार्ट अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है हमारे जीनोमिक डीएनए का। Most of the genome is made up of repetitive sequence which have no coding purpose specifically, but such reductant codes can help us better understand the genetic development of human race.
तो एज आई टोल्ड यू कि बहुत सारे ऐसे सीक्वेंस हैं जो किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं, जो किसी भी कैरेक्टर के लिए कोड नहीं करते हैं। तो ये जो जीनोमिक सीक्वेंस होते हैं वो हमें हमारे डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में बताते हैं, मतलब हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ, हमारा डेवलपमेंट कैसे हुआ। जो ये जो जीन्स होते हैं, अभी एक छोटा सा चीज आप लोग दिमाग में रख लो कि अभी हमारे बॉडी में नॉन फंक्शनल है, कोई फंक्शन नहीं है, कुछ किसी के लिए कोड नहीं करते, बट दे माइट हैव बीन एक्टिव इन आवर एंसेस्टर्स और आवर प्रीवियस ऑर्गेनिजम्स जिससे हमने इवॉल्व हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जिससे इवॉल्व हुए हैं उनमें ये जीन्स शायद एक्टिव थे, उनमें वो कुछ कैरेक्टर्स के लिए कोड करते थे, लेकिन विथ इवोल्यूशन वो कैरेक्टर्स एलिमिनेट होते गए और उसके जगह पे नए नए कैरेक्टर्स डेवलप करते गए जो अभी हमारा मॉडर्न फीचर्स को डिटरमाइन करता है। सो दैट इज हाउ दिस आवर जीनोम इज देयर। ठीक है, तो दिस आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ HGP. Now what are the applications? It is a very vast array of applications. इसका बहुत vast array of application होता है। कहाँ कहाँ पे use होता है? I'll just give you a diagram to make you understand. In medicines and pharmaceutical industries, we are using it. We're using it for agriculture and bioremediation processes. We're also using it for diagnostic and therapeutic applications. Gene therapy, मतलब अगर किसी को कोई जेनेटिक डिजीज है उसको हम लोग रिकवर करवा सकते हैं बाय दिस टेक्निक कॉल्ड एज जीन थेरेपी, उसमें भी यूज होता है HGP. Preventive measures for different genetic disease, that also is carried out. Microarray technology, evolutionary and comparative biology. Then you have your pharmacogenomics, developmental biology, proteomics. So there are many such branches जहाँ पे human genome project use हो रहा है. I'll not go into much details of these branches. आप सिर्फ इतना याद रख लो कि ये multiple branches हैं जहाँ पे use हो रहा है. 3 basic categories में divide कर सकते हैं. बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मेडिसिन में यूज होता है और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में यूज होता है. सो यू कैन जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड टेक डाउन द नोट्स दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशन. और ये जो आपका एप्लीकेशंस भी है इसको भी आप लिख सकते हो, जस्ट टेक डाउन द नेम्स, कहाँ कहाँ पे कहाँ उसको हम लोग अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. इन द नेक्स्ट टॉपिक we'll discuss about the DNA fingerprinting. Thank you everyone.